वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को खत। वज़ीर-ए-आज़म की बांग्लादेश में हालिया सैलाबी सूरत-ए-हाल पर मदद की पेशकश। कहा, मुश्किल सूरत-ए-हाल में बांग्लादेश और बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े हैं, हर मुमकिन मदद करेंगे। बांग्लादेश जल्द मुश्किल सूरत-ए-हाल से निकल जाएगा। दोस्त और दुश्मन की पहचान हमेशा उसके किरदार से होती है। भारत जो बांग्लादेश को अपना दोस्त कहता था, आज वो ऐसी दुश्मनी निभा रहा है जिसका हम लोग बयान भी नहीं कर सकते। 40 साल बाद इतना बड़ा फ्लड बांग्लादेश की तरफ छोड़ा गया है भारत की तरफ से। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बांग्लादेश को मदद की ऑफर की है कि हम लोग अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। और बांग्लादेश के अंदर जो नुकसान हुआ है इसके ऊपर दुख का इजहार किया पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म ने। पाकिस्तान का वजीर-ए-आज़म बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़ा है। और दूसरी तरफ कातिल मोदी बांग्लादेश को डुबोने की कोशिश कर रहा है। जो दोस्त होने का दावा करता है, आज वो बांग्लादेश को मारने पे तुला हुआ है, आज वो बांग्लादेश को खत्म करने पे तुला हुआ है। और दूसरी तरफ जिसको अक्सर दुश्मन कहा जाता है पाकिस्तान का वजीर-ए-आज़म बांग्लादेश को मदद की ऑफर कर रहा है। तो आज इसी हवाले से वीडियो है कि कैसे भारत ने आज तक बांग्लादेश के अंदर फ्लड छोड़ा है और कैसे बांग्लादेश की जमीनें, बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश के घरों को तबाह किया है। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को खत। वज़ीर-ए-आज़म की बांग्लादेश में हालिया सैलाबी सूरत-ए-हाल पर मदद की पेशकश। कहा, मुश्किल सूरत-ए-हाल में बांग्लादेश और बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े हैं, हर मुमकिन मदद करेंगे। बांग्लादेश जल्द मुश्किल सूरत-ए-हाल से निकल जाएगा। উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত বাংলাদেশ। গত ৩ দশকের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যায় ধুঁকছে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য। রেকর্ড বৃষ্টিতে পানি বৃদ্ধির কারণে ঘটতে পারে মহা দুর্যোগ। আগে থেকেই ভারত পেয়েছিল এমন পূর্বাভাস, কিন্তু দেশটির কেন্দ্রীয় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে বাংলাদেশকে দেয়া হয়নি বিশেষ কোনো সতর্কবার্তা। বিধ্বংসী বন্যার আশঙ্কা জেনেও কেন সাবধান করেনি ভারত? দিল্লির এই ভুল কি ইচ্ছাকৃত নাকি প্রতিবেশী দেশের প্রতি সদিচ্ছার অভাব? ভারতের তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা অববাহিকায় ভারী বৃষ্টি হলে সেই ঢল বাংলাদেশে আসতে সময় লাগে ৩ থেকে ৭ দিন। কিন্তু এবার ৫ থেকে ৮ ঘন্টার মধ্যে ফেনী, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে চলে আসে ত্রিপুরার পানি। এমন জরুরি পরিস্থিতিতে দিল্লির উচিত ছিল অতি দ্রুত ঢাকাকে সতর্ক করা। বাংলাদেশের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানিয়েছে, গোমতী ও মাতামুহুরী নদীর ভারতীয় অংশে পানি বৃদ্ধির আনুষ্ঠানিক তথ্য পায় বাংলাদেশ। কিন্তু বিস্তারিত জানতে না পারলে বন্যার সঠিক পূর্বাভাস দেয়া কঠিন বলে মন্তব্য করেন প্রতিষ্ঠানটির একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা। বাংলাদেশ ও ভারতের বৃষ্টিপাতের তথ্য অনুসারে ফেনী, কুমিল্লা ও ত্রিপুরা রাজ্যের ওপর ৩ দিনে রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি চলমান বন্যার প্রধান কারণ। আবহাওয়া সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ১০ দিন আগেই দেয়া যেত এমন বর্ষণের সাধারণ পূর্বাভাস, আর ৩ দিন পূর্বে দেয়া যেত শতকরা ৯০% নিশ্চিত খবর। দুই দেশের যৌথ নদী কমিশনের মধ্যে তথ্য আদান প্রদানের সমঝোতা থাকলেও এই বিষয়ে নেই সুনির্দিষ্ট কোনো চুক্তি। উজানের দেশ হিসাবে বন্যার আগাম সতর্কতা দেয়া ভারতের দায়িত্ব, কিন্তু সেটা না মানলে কিংবা গুরুত্ব না দিলে নেই কোনো রকম জবাবদিহিতা দাবি করার উপায়। ১৯ আগস্ট থেকে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে হওয়া অতি ভারী বৃষ্টি ছিল গত ৫৩ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। হঠাৎ অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে আসা ঢলের পাশাপাশি পানি নেমে যাওয়ার পথ সংকুচিত হওয়ার কারণে খুব দ্রুত ভয়াবহ রূপ নিয়েছে পরিস্থিতি। বন্যার পূর্বাভাস সঠিকভাবে দেয়া বাংলাদেশ ভারত যৌথ নদী কমিশনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানি হ্রাস বৃদ্ধির তথ্য বিনিময় ও বন্যার সঠিক পূর্বাভাস দেয়া গেলে এড়ানো যেত এমন বড় বিপর্যয়।
এর মধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে, ভারী বৃষ্টির আগাম তথ্য কেন জানাতে পারল না বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তর? 2022 সালে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগে করা হয়েছিল প্রায় 20,000 নদী খেকো দখলদারের তালিকা, যাদের বেশিরভাগই ছিল তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী। উজানের পানি নামার পথ ঠিক রাখতে কঠোর হাতে দমন করতে হবে নদী দখলের অপতৎপরতা। অভিন্ন নদীতে ভারত যেসব বাঁধ দিয়েছে, সময় এসেছে সেগুলোর বৈধতা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে কথা বলার। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আন্তঃসীমান্ত নদীতে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে ভারতের দায়সারা মনোভাব পরিবর্তনে প্রয়োগ করতে হবে কৌশলী চাপ। পাশাপাশি এমন দুর্যোগে সময় উপযোগী পদক্ষেপের জন্য বাংলাদেশকে নিতে হবে দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তুতি। हाफिजुल इस्लाम। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि किस तरह की तस्वीरें बांग्लादेश से निकल के सामने आ रही हैं। खुद को बांग्लादेश का दोस्त कहने वाला कातिल भारत आज बांग्लादेश को डुबोने की कोशिश कर रहा है। नरेंद्र मोदी जो हमेशा साजिशें करते हुए वजीर आजम बना, आज एक दफा फिर बांग्लादेश के अंदर वो फैसले कर रहा है। बांग्लादेश के किसानों को, बांग्लादेश के शहरियों को और बांग्लादेश के अंदर रहने वाले लोगों को किस तरह सैलाब में डुबो रहा है। और बांग्लादेश के 2 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हुए हैं, जो बिल्कुल इस दरिया के किनारे पे बैठे हुए हैं। और किस तरह बांग्लादेश के 6 अजला में सैलाब आया, फ्लड आया है, और किस तरह बांग्लादेश को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बांग्लादेश के जानवर मर रहे हैं, बांग्लादेश की जमीनें तबाह हो रही हैं, बांग्लादेश के लोग बेघर हो रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के वजीर आजम बांग्लादेश को मदद की अपील कर रहे हैं कि मदद करने के लिए हम लोग आपके साथ तैयार हैं, हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। ये होती है दोस्ती। और दूसरी तरफ जो भारतीय वजीर आजम बांग्लादेश के अंदर कर रहा है, ये होती है आबी दहशतगर्दी। जो भारत पानी के ऊपर सियासत करता है, जो भारत बांग्लादेश के हक के पानी को चोरी करता है, और जब ज्यादा बारिशें होती हैं तो इसी पानी को बांग्लादेश की तरफ छोड़कर यह दहशतगर्दी करता है, बांग्लादेश के लोगों को मारने की कोशिश करता है। और इसको भी एक तरह से आबी दहशतगर्दी कहा जाएगा, जो भारतीय नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के साथ कर रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।